स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने अमित शाह के भाषण की बारीकी से की जांच। कहा, एनआरसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद अमित शाह ने राजीव गांधी समेत किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं की आपत्तिजनक टिप्पणी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने लगाया था आरोप। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान 123वां संशोधन विधेयक पर आज भोजनावकाश के बाद लोकसभा में होगा विचार। आम सहमति से पारित कराने के लिए सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील। SC/ST के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, इसी सत्र में पारित किया जाएगा बिल। कांग्रेस करेगी विधेयक का समर्थन। संयुक्त अरब अमीरात का अवैध विदेशी कामगारों के लिए 3 महीने की वीजा माफी योजना का ऐलान। बगैर पेनल्टी देश छोड़ने की इजाजत और 6 महीने में नई नौकरी ढूंढने की मोहलत। गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे सैकड़ों भारतीयों समेत अन्य देशों के कामगारों को मिलेगा फायदा। और महिला हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज आयरलैंड से भिड़ेगी भारतीय टीम। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने 9 विकेट खोकर बनाए 285 रन। आर अश्विन ने 60 रन देकर झटके 4 विकेट। सबसे पहले बात संसद सत्र की। राज्यसभा में आज सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन को जानकारी दी कि एनआरसी पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की आपत्ति पर उन्होंने बीजेपी सांसद अमित शाह के भाषण की बारीकी से जांच की है। सभापति ने पाया कि अमित शाह ने मंगलवार को दिए अपने भाषण में एनआरसी समझौते को लागू करने को लेकर किसी प्रधानमंत्री पर हिम्मत नहीं दिखाने से जुड़ी कोई टिप्पणी नहीं की। Yesterday, 2 point of orders were raised. One point of order by Sukendra Sekhar Rai. He himself has answered the point of order also, saying that if the chairman permits, the member can resume his speech. So that matter ended there. Second point of order was raised by Sri Anand Sharma ji. After laying the papers, Anand Sharma ji, member and deputy leader of the Indian National Congress Party in Rajya Sabha, raised a point of order quoting Rule 238(5), which reads as under: a member while speaking shall not, upon reflect the conduct of persons in high authority unless discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. That's the rule. Sri Anand Sharma ji has alleged that one of the honourable members of the Parliament, while participating in the discussion on the draft National Register of Citizens of Assam on the 31st of July 2018, used derogatory and unparliamentary words against Sri Rajiv Gandhi and subsequent Prime Ministers and demanded that the honourable member should apologize and those words should be expunged from the records. He was agitated about the issue and I had promised to look into the records. I have gone through the records and found that no mention of the persons of high authority as alleged by Sri Sharma ji were actually made by Sri Amit Shah. Rather, it was Anand Sharma ji, while making the said allegation, used one unparliamentary word which he attributed to Shah, and therefore he has to be expunged, that Bujdilwa. I can't say it now. Expunged from the parliamentary records. But today morning, Sri Anand Sharma met me in my chamber. I discussed the issue and then brought to his notice what has been said there. So he has accepted with me. That's why I'm closing the matter there itself. And in fact, Shah did not refer. Please let me complete now. In fact, Shah did not refer to any other Prime Minister except Sri Rajiv Gandhi, that too as a matter of fact only. And now Sharma ji is saying by implication. By implication one should not treat. Let us close the matter there only. I treat this matter as closed as far as that issue is concerned. पंचानन मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधा संसद भवन परिसर से हमारे साथ जुड़े हैं। पंचानन, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की आपत्ति पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्होंने जो अमित शाह हैं उनके बयान की पूरी तरह से जांच की है और बारीकी से जांच की गई है और इस तरह का कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई है और ये मसला अब हल माना जाए।
देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि देखिए राज्यसभा में पिछले 3 दिनों से एनआरसी के मुद्दे पर अवरोध चल रहा था। हाँ। लेकिन आज वो अवरोध यहाँ पर नहीं दिखा और उसका एक बड़ा कारण ये था कि जब सभापति वेंकैया नायडू ने सदन की शुरुआत के वक्त ही ये कहा कि जो पिछला विवाद था, यानी कि जब अमित शाह जी ने जो बयान दिया और उसमें राजीव गांधी का जिक्र किया, हाँ। उसके बाद उसमें उसके रिकॉर्ड को उन्होंने देखा और उसमें कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक यानी डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं किए गए थे किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो इस मुद्दे को यहीं पर बंद माना जाना चाहिए और इसके बाद ये सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली और शून्यकाल की कार्यवाही भी चली और उसके बाद यहाँ पूरा प्रश्नकाल भी चला। और उम्मीद की जानी चाहिए कि जब भोजनावकाश के बाद जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा तो जो अल्पकालिक चर्चा यहाँ पर लगी हुई है एमएसपी, जो खरीफ फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके बारे में, और जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को भी शुरुआत करनी है उसकी, उस पर अच्छी चर्चा होगी और उसके बाद जो बिल लिस्टेड है वो उनके लिए उसके बाद लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि एनआरसी के मुद्दे पर जो बाधा थी वो यहाँ पर हल होती हुई नजर आ रही है और इस पर इंटरवेंशन जो सभापति वेंकैया नायडू का था वो भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रीति, बिल्कुल, और फर्स्ट हाफ भी अच्छे से चला है और अब यही उम्मीद है, जैसा आप भी बता रहे हैं, कि जो सेकंड हाफ है उसमें चर्चा भी जो है वो भी होगी और विधायी कामकाज भी निपटाए जा सकेंगे, ऐसी उम्मीद हो रही है। फिलहाल पंचानन आप बने रहिए। लोकसभा में भी आज अहम विधेयक हैं, उनके बारे में पहले बता दें। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित संविधान 123वां संशोधन विधेयक पर आज भोजनावकाश के बाद लोकसभा में विचार होगा। सरकार ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि इस विधेयक को पारित कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विधेयक को आम सहमति से पारित कराने पर जोर दिया है। ये विधेयक पिछले साल 10 अप्रैल को लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसे कई संशोधनों के साथ 31 जुलाई 2017 को पारित किया और 1 अगस्त 2017 को लोकसभा को लौटा दिया। ऐसे में संशोधित बिल को फिर लोकसभा में पेश करना पड़ा। 1993 में वैधानिक संस्था के तौर पर स्थापित एनसीबीसी को बेहद सीमित शक्तियां दी गई थी। इसे सिर्फ किसी जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में जोड़ने या हटाने की सिफारिश का अधिकार है। नया संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद एनसीबीसी को अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा का पूर्ण अधिकार मिल जाएगा। ओबीसी के लिए, ओबीसी कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेने वाले हैं। तो कल मैं कांग्रेस से लेकर के सभी विपक्षीय पार्टी और सभी पार्टियों से मैंने निवेदन किया हूं, यानी आम सहमति से इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित करें। तो हम हमारे दोनों साथी अर्जुन राम मेघवाल जी और हमारे चीफ विप अनुराग ठाकुर जी, सभी दलों से हमने लगातार बातचीत किया है। और एक बार मैं निवेदन करता हूं, आज दोपहर में जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा, क्योंकि ये देश के हित में है, सामाजिक न्याय के हित में है, सबके हित में है और इसको हम सब एक सुर से पास करें और एक बड़ा कदम सामाजिक न्याय का रखें। और सीधा रुक करेंगे एक बार फिर से, हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचानन, हम सुन रहे थे अनंत कुमार सभी दलों से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा जो संविधान संशोधन बिल है उसे पास किया जाए, सभी दल इसमें सहयोग करें। और हम जानते हैं कि विधायी कामकाज के लिहाज से सत्र में अब काफी कम दिन बचे हैं, ऐसे में सरकार ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने चाहेगी। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, अगर आज का दिन मिला ले और अगले सत्र के 4 दिन और मिला ले तो कुल मिलाकर 5 दिन सरकार के पास हैं। और सरकार ने प्राथमिकता में कहा था कि ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा दिलाने से जुड़ा जो विधेयक है उसको पारित कराना उनकी प्राथमिकता है। तो निश्चित तौर पर सरकार यहाँ संवेदनशील भी नजर आ रही है और सतर्क भी नजर आ रही है। इसके अलावा जैसा कि हमने अभी देखा लोकसभा में जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि SC/ST के एट्रोसिटीज से जुड़े जो बिल है उसको भी इसी सत्र में लाने की कोशिश है, क्योंकि कल ही कैबिनेट ने उसको मंजूर किया था। तो एक बिल SC/ST से जुड़ा हुआ है और दूसरा ये ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिलाने जुड़ा हुआ है। तो आज इस पे ओबीसी वाले बिल पर अभी 2 बजे के बाद चर्चा जो है प्रस्तावित है, ये लगा हुआ है। तो इससे नजर आ रहा है कि सरकार इसको लेकर सतर्क भी है और संवेदनशील भी है और किस तरह से अपोजिशन को साथ लेकर इसी सत्र में इन दोनों बिलों को पारित कराने की कोशिश देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और सरकार SC/ST के संरक्षण से जुड़े विधेयक को इसी सत्र में पारित कराएगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी लोकसभा में दी है।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संरक्षण से संबंधित विधेयक का मुद्दा उठाते हुए विधेयक को समर्थन देने की बात कही। इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार SC/ST के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और इसी सत्र में विधेयक को पारित कराने की कोशिश करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने से जुड़े विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से हटाए गए प्रावधानों को फिर जोड़ा जाएगा। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के ऊपर क्यों ऑर्डिनेंस लाए? ये व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। हजारों लोग रोज मरते हैं, हर 15 मिनट में एक अत्याचार होता है और आज कम से कम 47,000 आज अत्याचार और अन्याय हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इसको जल्द से जल्द इसको ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, वो तो इग्नोर कर दिए। कम से कम आप बिल कल पेश कीजिए, हम सब मिलकर उसको पास कर देंगे। सदन के सम्मानित सदस्य मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया है, मैं समझता हूं सचमुच मुझे आश्चर्य हुआ है कि इस मुद्दे को इस पर उठाने का क्या औचित्य था। शायद इन्हें इस बात की जानकारी हो चुकी है कि कल ही श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने कल SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज बिल को अप्रूव कर दिया। सारा देश इस सच्चाई से अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप जो इस एक्ट में ऐसा महसूस किया जा रहा था कि कुछ डाइल्यूशन हुआ है, तो उसके तत्काल बाद ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हम इसी प्रकार का बिल लाएंगे, जरूरत हुई तो इससे भी हम कड़ा बिल लाएंगे। यह उनका कमिटमेंट था। उन्होंने कहा इसमें न कोई इफ है, न इसमें कोई बट है, न इसमें कामा में कोई चेंज होगा, न कोई फुल स्टॉप में चेंज होगा। यह जो है उन्होंने वादा देश के साथ किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उसी वादे के अनुरूप ही कल ही कैबिनेट ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में ही उस बिल को पारित कराना चाहेंगे और एक्ट के रूप में उसे कन्वर्ट करेंगे। राज्यसभा में उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड पाने पर गुलाम नबी आजाद, नजमा हेपतुल्ला, हुक्मदेव नारायण यादव, दिनेश त्रिवेदी और भर्तृहरि मेहताब को बधाई दी गई। इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों के योगदान की सराहना की। Honorable members, as you are all aware, Sri Ghulam Nabi Azad, member and leader of the opposition in Rajya Sabha, and Dr. Nazma Heftullah, former member and deputy chairperson of the Rajya Sabha, along with Sri Hukumdev Narayan Yadav, Sri Dinesh Trivedi and Sri Bhartruhari Mehtab, members of the Lok Sabha, were conferred the Outstanding Parliamentarian Award in a function held yesterday, the 1st of August 2018, in the Central Hall of the Parliament House. This house has been a witness to the political and administrative acumen, deep insight into various social issues, command over the rules and procedure of the House, and a simple but effective way of oratory of Sri Ghulam Nabi Azad and Dr. Nazma Heftullah. It is indeed a matter of great pride for this House that one sitting member and one former member have been conferred with this prestigious award. The rich experience of Sri Ghulam Nabi Azad in public life and as legislator and minister, including that of parliamentary affairs, lends weight to his present role in this august House as the leader of the opposition. Sri Azad, as a leader of the opposition, has been a great source of support to me in resolving many difficult situations. At the meet, there are two people, if I have to mention, who are always instrumental in resolving the issues and in helping the chairman whenever there is a problem. One is the leader of the opposition, other is the leader of the House. I am happy, though leader of the House is not here today, both have been recognized as outstanding parliamentarians. Earlier, leader of the House also
Sri Arun Jaitley also was conferred about the same. At the meeting of the leaders of various parties conveyed by me on the 17th of last month, that was a day before the start of this session, Sri Azad made it clear that all together shall ensure smooth functioning of the House. Referring to the last two unproductive sessions, Sri Azad noted with concern that people's esteem for legislature is going down. I am glad that this session got off a good start from that meeting. On behalf of the whole House and my own behalf, I congratulate all the members on their achievements and do hope that they continue to serve the Parliament and a nation for a long time with grace and distinction. I would also like to urge other members, particularly the new members, to emulate them and always conduct themselves in accordance with the parliamentary etiquette and make meaningful contribution to the polity and the nation. संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड पाने पर सांसदों को उन्होंने बधाई दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद को एक आदर्श सांसद बताते हुए उन्होंने कहा कि वो अपनी बात बड़े शांत लफ्जों और प्रभावी ढंग से रखते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के लिए खुशी की बात है कि विपक्ष के नेता को ये सम्मान दिया गया। राज्यसभा इस सदन के लिए बड़ी गर्व की बात है कि नज़मा हेपतुल्ला जी जो 16 साल तक इस सदन की डिप्टी चेयरमैन रही, हमारे सरकार में मंत्री रही और अभी मणिपुर में गवर्नर हैं, उनको उत्कृष्ट सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया। ये सब हम के लिए गर्व की बात है। और उससे भी ज़्यादा गर्व की बात यह है कि नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद जी को, जो कि बहुत ही मैं समझता हूं कि एक आदर्श सांसद के रूप में मैं उनको कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और नेता विपक्ष के रूप में जिस तरह से मैंने उनको देखा है कि बड़े सौम्य तरीके से और समय पर और अपनी बात को प्रभावी रूप से रखने में, कम बोलते हैं पर प्रभावी रूप से बोलते हैं, और जब आनंद शर्मा जी हमको दिक्कत में डालते हैं तो वो दिक्कत से निकालते हैं। तो इसलिए भी मैं एक संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते भी आभार व्यक्त करता हूं। हमने देखा है गुलाम नबी आज़ाद जी को, हमने केवल उनकी मधुरता नहीं देखी, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह प्रभावी रूप से वे हम सांसदों के लिए एक आदर्श बने हैं। और एक छोटी ब्लॉक स्तर के ऊपर से उन्होंने राजनीति शुरू की। यूथ कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, फिर ऑल इंडिया के बने, देश के हेल्थ मिनिस्टर बने, देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, और केवल मिनिस्टर नहीं बने, उन्होंने अपनी एक छाप भी छोड़ी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में भी प्रभावी रूप से उन्होंने शासन किया। आज हम सबको बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे सदन में और सदन के विपक्ष के नेता को उत्कृष्ट सांसद का अवार्ड जो राष्ट्रपति से मिला है, उसके लिए मैं आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। शून्यकाल में बीजेपी सांसद श्वेत मलिक ने अवैध ट्रैवल एजेंटों का मुद्दा उठाया। इस मामले में पंजाब सरकार से कार्रवाई की मांग के साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से भी हस्तक्षेप की मांग की। सरकार से ये निवेदन करूंगा कि प्रदेश सरकार को डायरेक्ट करें। सर 1100 सिर्फ ट्रैवल एजेंट अधिकृत है और हजारों ट्रैवल एजेंट आप आज भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो पंजाब सरकार को इंटरवीन करे और सरकारी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी भी लगाएं जो क्रॉस चेक करे और ऐसे लोगों से पंजाब वासियों को छुटकारा दिलाएं। वहीं सदन में सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम ने महंगे होते हवाई टिकटों की तरफ सदन का ध्यान दिलाया। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। My demand is that the government will intervene and try to allot a new series of special flights to Kerala. Thank you. So that they can come and go back to the working place. Right. Thank you, Vinay. इसके अलावा शून्यकाल में जेडीयू सांसद कहकशां परवीन ने ट्रेनों में खाने की गिरती गुणवत्ता का मुद्दा उठाया।
रांची राजधानी में पिछले हफ्ते एक न्यूज़ चैनल में दिखाया कि रांची राजधानी में सफ़र कहे यात्रियों को जो खाना परोसा गया उससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया। मैं सभापति महोदय से ये चाहूँगी कि जो मंत्री जी हैं उनसे ये कहा जाए कि जो इसमें खाना परोसते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। और यही हाल हमारे सरकार का नारा है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत पर हम ध्यान देते हैं कि हमारे जब जहां स्वच्छता रहेगी वहीं स्वास्थ्य भी रहेगा, लेकिन यही हाल डिब्रूगढ़ राजधानी में भी है। जो खाना परोसा जाता है वहां रसोई यान उसमें नहीं है और जो रसोई यान है वहां से खाना ला करके AC फर्स्ट क्लास में जो खाना परोसते हैं वहां पर जिस तरह से खाना परोसा जाता है अगर देख लिया जाए तो खाने की तबीयत नहीं होगी, लेकिन सफ़र में लोग यात्री रहते हैं, मजबूरन उस खाने को खाते हैं। मेरी मांग ये है कि डिब्रूगढ़ राजधानी में रसोई यान लगाई जाए जिससे कि यात्रा कर रहे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मैं माननीय मंत्री जी से, मैं सरकार से ये चाहूँगी कि इस मुद्दे को मैंने पहले भी उठाया था और इस मुद्दे को मैं आज भी उठा रही हूँ, इसको गंभीरता से लें ताकि यात्री जो सफ़र कर रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हाल ही में की गई बढ़ोतरी और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर आज राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा होगी। इसमें बीजेपी सांसद अमित शाह के अलावा विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सांसद भूपेंद्र यादव, अमर शंकर साबले, प्रसन्न आचार्य, प्रताप केशरी देव, भास्कर राव निकांती, मनोज कुमार झा, बिनोय विश्वम और वी विजयसाई रेड्डी कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर अपने अपने विचार सदन में रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे कामगारों के लिए वीजा माफी कार्यक्रम शुरू किया है। 3 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम का लाभ वहां रह रहे सैकड़ों भारतीयों समेत अन्य देशों के कामगारों को भी मिलेगा। इसके तहत निर्धारित अवधि से ज्यादा समय से रह रहे कामगार अगर देश छोड़ना चाहेंगे तो उन्हें कोई हर्जाना नहीं देना होगा। उन्हें नई नौकरी खोजने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। UAE में लगभग 28 लाख भारतीय काम करते हैं। और अब खबरें खेल की दुनिया से। महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारत ने इटली को नॉकआउट मैच में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इटली को 3-0 से हराया था। सेमीफाइनल मुकाबले में शनिवार को होंगे और विश्व कप का फाइनल रविवार को खेला जाएगा। बात करेंगे खास शख्सियत की। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय झंडे को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की आज जयंती है। पिंगली वेंकैया का जन्म आज ही के दिन 1876 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वो कृषि वैज्ञानिक भी थे। 4 जुलाई 1963 को उनका निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि कम ही लोग पिंगली वेंकैया जी के बहुआयामी व्यक्तित्व से परिचित होंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति ने बताया कि पिंगली वेंकैया महात्मा गांधी के संपर्क में आए और ये संपर्क अंत तक बना रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आखिर में एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर। नमस्कार।